Hello everyone, welcome in S Technologies. So today we are going to learn about Selenium tool, and all of you know that it is a software testing tool. So basically today I am going to share you some points regarding Selenium WebDriver. So first of all, Selenium, what is Selenium and where we are using actually? So in automation tools we are using Selenium framework, and the Selenium framework is an open source web based automation tool, so we can use it easily. It is a open source, it doesn't require any packaged or any license agreement, and it is a portable framework to testing the web applications. If you want to test some application through browser, you can go with the Selenium. It is a totally web based application tool, web based application framework, and it is developed by Jason Huggins in 2004, and you can record your test cases using Selenium, and you can play back that test cases also. So now let's check it out, what is actual components available in a Selenium. So there are 4 components available in a Selenium: Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium RC, and Selenium Grid. So we will learn this some components one by one. So first of all, we are going to learn about Selenium WebDriver, how to use it, where to use it, and actually what is the feature of a Selenium WebDriver. So basically, if you are using Selenium WebDriver, you can directly communicate with your browser. There is no necessary to install some mediator, some intermediate drivers on your machine. You just have to type a code to test web application, and your output will be shown on a browser. So it's a very simple and crystal clear WebDriver application. So you can use a certain programming language in designing your test cases. If you are going with the WebDriver, there is no need to record and play back. There is no need of an intermediate RC or grid. You just have to know some programming languages to develop your test cases. Like if you are going with the WebDriver, you know some languages like Java, Python, C Sharp, Ruby, Perl, PHP. Using one of this language, you can do coding in a WebDriver. So we know Java, that's why we are going to do WebDriver coding in a Java programming language. So it is a cross-platform testing framework that allows you to execute your test cases against different browsers. So cross-platform means you can test your test cases, your application on any browser. Like this WebDriver works on Firefox, Mozilla, then Chrome, then Safari. So you can test your application on any platform, on any browser. That's why it's known as a cross-platform testing framework. So it does not require any core engine. As I said, there is no requirement of any intermediate mediator in between you and your browser. There is no required of any core engine like Selenium RC. So if you want to do some coding, or you want to do create test cases using WebDriver, you must know some concepts. Like there are some classes, there are some interfaces in a WebDriver. As I said, you have to know some programming languages. If I'm saying programming languages, that means there are some classes, interfaces, functions comes automatically. So in a WebDriver, there are some classes like by, WebDriver. So WebDriver is an interface, by is a class, web element is an interface, then Chrome driver and Gecko driver, they both are the classes. So we will learn these concepts one by one in our coding section. I am just telling you theoretical part right now regarding our WebDriver. So when we are starting coding in a WebDriver, we have to follow some steps. So first of all, you have to download some jars for a particular language. See, we are coding in a Eclipse, right? So in a Eclipse, we have to download some jars
for a particular framework. So for WebDriver we have to download some jars. So you can go on this link, that is a Selenium's official link. You have to go there and you have to download particular jar for that particular language. The second step is you have to download specific WebDriver server. Means if you are going to test your application on a Firefox, you have to download Gecko driver. If you are testing your application on a Chrome, you have to download Chrome driver. Okay, so you can download this driver from Abo link, that is a selenium.dev link. Then third step is you have to check version of your browser to download that drivers, because version is very important. If you are downloaded your Chrome with the 68 version, you have to download the same version for your driver. So this is some steps, so you have to just follow these steps. And now we start our coding section. So let's start our practical section now. First of all, you have to go on a Selenium official website, that is a selenium.dev. Our first step is download all the jars which is related to your programming language which we are going to use in a Selenium WebDriver. So आज हम Selenium WebDriver का यूज़ देखेंगे using Java programming language. Okay, once this website gets open on your screen, it will look like this. Okay, scroll down करके आपको थोड़ा नीचे आना है. Selenium WebDriver इस ऑप्शन में जाकर डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है. देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है. वी आर यूजिंग जावा लैंग्वेज फॉर WebDriver. ओके, सो लैंग्वेजेस वाले सेक्शन में आपको जावा की जार फाइल्स डाउनलोड करनी है. यहाँ से आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है एंड देन जार्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हो चुकी है हमारी. WebDriver का कोड हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है. सो मैंने जावा का ही जार्स डाउनलोड किए हैं. इफ़ यू आर डूइंग कोडिंग इन पाइथन लैंग्वेज और रूबी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप जार्स यहाँ से डाउनलोड्स कर सकते हो. देन सेकंड स्टेप थी हमारी कि ड्राइवर डाउनलोड करना. अगर आप एप्लीकेशन क्रोम पे टेस्ट कर रहे हो, यानी क्रोम ब्राउज़र पे टेस्ट कर रहे हो, तो उसी के रिलेटेड ड्राइवर आपको डाउनलोड करनी होगी. सेम पेज पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है. ब्राउज़र्स ऑप्शन मिलेगा. इन दिस ऑप्शन आपको डिफरेंट ब्राउज़र्स के नाम मिलेंगे. अगर आप फायरफॉक्स पे आपको एप्लीकेशन टेस्ट करना चाहते हो, तो फायरफॉक्स के यहाँ पे इस लाइन में आपको डॉक्यूमेंटेशन एक ऑप्शन मिलेगा. इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन वहाँ से आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है. आज मैं आपको क्रोम के अंदर मेरा एप्लीकेशन टेस्ट करके दिखा रही हूँ. सो मैं क्रोम वाले सेक्शन में जाऊँगी. इन दिस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी एंड देन जो ड्राइवर होगा क्रोम ब्राउज़र के लिए वो मैं डाउनलोड करूँगी यहाँ से. बट बिफोर डाउनलोडिंग दिस ड्राइवर हमें क्या करना होगा, पहले क्रोम ब्राउज़र का वर्जन जो है वो चेक करना होगा. अगर आप फायरफॉक्स के लिए ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हो तो पहले फायरफॉक्स का वर्जन ज़रूर चेक कर लेना. सो क्रोम का वर्जन चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है. देन हेल्प अबाउट गूगल क्रोम. सो मेरा जो क्रोम है उस क्रोम का वर्जन लेटेस्ट है, दैट इज़ 86C. मेरे क्रोम का वर्जन जो है लेटेस्ट है 86, तो मैं 86 वर्जन वाला ही ड्राइवर डाउनलोड करूँगी, यानी कि फर्स्ट वन. अगर आपका 87 है या बिलो 86 है तो आप उसी रिलेटेड ड्राइवर डाउनलोड कर देना. क्रोम के लिए जो ड्राइवर है फॉर विंडोज़ 32 बिट एंड विंडोज़ 64 बिट, दोनों के लिए ये वाला ड्राइवर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा. विंडोज़ 64 बिट के लिए भी वर्क करता है, विंडोज़ 32 बिट के लिए भी वर्क करता है. ओके, सो इस तरीके से हमें ये दो चीज़ें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करनी है. तो जार्स हो चुकी है एंड ये देखिए क्रोम ड्राइवर जो है वो भी डाउनलोड हो चुका है. नाउ अगर आपको क्रोम ब्राउज़र के लिए कोई और वर्जन के ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो. आपको
ऑल वर्जन्स अवेलेबल इन ए डाउनलोड्स, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट वर्जन्स के ड्राइवर्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप आपके क्रोम के रिलेटेड ड्राइवर डाउनलोड कर देना। ओके, सो मैं आज आपको सिर्फ गूगल पेज जो है, यानी कि ये वाली स्क्रीन, ये क्रोम ब्राउज़र पर सेलेनियम वेब ड्राइवर के थ्रू ओपन करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, पहले ये जो जार्स मैंने डाउनलोड की है वो जार्स जिप फाइल्स है, तो हमें क्या करना होगा, पहले उस जिप फाइल्स को अनजिप करना होगा एंड प्रॉपरली एक फोल्डर में स्टोर करना होगा। जार्स जो है वो एक फोल्डर में रखेंगे हम। ठीक है, तो मैं एक नया फोल्डर बना रही हूँ पहले, सेलेनियम जार्स। इन दिस फोल्डर मैं ये सेलेनियम जावा वाला जो जिप फाइल है वो पेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज इस जिप फाइल में ही मेरे जार्स है। सो राइट क्लिक कीजिए इस फाइल पे एंड देन एक्सट्रैक्ट हेयर, सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो टोटली इस जावा के लिए 7 जार्स लगती है हमें। जार्स जो है इस सिंबल में दिखाई देती है। ओके, ये जो बाकी के फाइल्स है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट दिस 2 जार्स। ओके, इन दिस लिप्स फोल्डर यहाँ पर 5 है, तो टोटल कितनी हो गई, 7 जार्स हो चुकी है। सो ये 7 जार्स जो है मैं एक जगह पे ला रही हूँ लाइक दिस। सो जब मैं ये ऐड करूँगी अपने कोड में तो ईज़िली मुझे फाइंड आउट होगा कि ये 7 जार्स मुझे ऐड करनी है। ओके, नाउ सो क्रोम ड्राइवर, इसको भी मैं मेरे फोल्डर में डाल रही हूँ, सेलेनियम जार्स फोल्डर में। एंड यहाँ पे मैं एक इन दिस सेलेनियम जार्स फोल्डर ड्राइवर नाम का फोल्डर बना रही हूँ, और इस ड्राइवर फोल्डर में मैं ये जो क्रोम ड्राइवर की जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, तो जो क्रोम ड्राइवर है ये ड्राइवर फाइल है, एंड जार्स जो लगती है हमें सेलेनियम कोड के लिए वो ये जार्स है, 7 जार्स। जार्स कोड में ऐड की जाती है, प्रोजेक्ट में ऐड की जाती है। ओके, अब हम जाएंगे इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में कोडिंग करने से पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। सेलेनियम प्रोजेक्ट, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। वंस योर प्रोजेक्ट गेट क्रिएटेड, आपको क्या करना होता है, जो जार्स है इस प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है। सो हाउ टू ऐड जार इन अ प्रोजेक्ट, राइट क्लिक कीजिए आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, देन बिल्ड पाथ एंड कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ये विंडो पे आपको लाइब्रेरी स्टेप पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड होती है, अगर सिलेक्ट नहीं होंगी तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन राइट साइड में कुछ बटन्स दिखाई देंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन अ सेकेंड बटन, ऐड एक्सटर्नल जार्स बटन। देन इस विंडो में आने के बाद जहाँ पर आपने जार्स रखी है वो वाले ड्राइव में जाइए। तो मैंने डाउनलोड्स में सेलेनियम जार्स में मेरे 7 जार्स रखी है, सी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है 7 जार्स। और ये जो ड्राइवर फोल्डर है उसमें मैंने ड्राइवर रखा है, दैट इज़ द ड्राइवर, वो जार नहीं है, उसे कभी भी आपके प्रोजेक्ट में बिल्ड पाथ मत करना। 7 जार सिलेक्ट कर लिए, देन ओपन, अप्लाई एंड क्लोज। आप देख सकते हो आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरीज में आपके 7 जार्स ऐड हो चुके हैं। ओके, देन पैकेज बनाइए, पैकेज में प्रोजेक्ट यानी कि हमारा क्लास। सो मैंने एक पैकेज बनाया, उस पैकेज के अंदर एक क्लास बना रही हूँ। ओपन गूगल, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन आप जब टेस्ट करते हो यूजिंग वेब ड्राइवर, तो उस एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर वेबसाइट यूज़ कीजिएगा। अगर वेबसाइट प्रॉपर नहीं रहेगी तो एप्लीकेशन टेस्ट नहीं होगा, जावा का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। आफ्टर दिस मेन फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन बना रही हूँ एक,
ओपन ब्राउज़र। आज मैं आपको गूगल वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र में ओपन होती है या नहीं वेब ड्राइवर के थ्रू वो टेस्ट करके दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to use system class, then set property function with the two parameters. First is a key and the second one is a उस की वैल्यू। ओके, सो की जो होती है वो होती है लाइक दिस, वेब ड्राइवर डॉट आपके ब्राउज़र का नाम जो आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ टेस्टिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर क्रोम दिया। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग के लिए तो आपको यहाँ पर गीको ये ब्राउज़र का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है। गीको इज़ अ नेम ऑफ ए फायरफॉक्स ब्राउज़र। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रोम। सो ये है मेरी की वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। यह सिंटैक्स आपको ऐसे ही की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, की का नाम जो भी है वो प्रोवाइड करना है। ओके, सेकेंड पार्ट में आती है, यहाँ पर आपको देना है ड्राइवर जो हमने डाउनलोड किया है क्रोम ब्राउज़र का ड्राइवर, राइट, दिस वन। तो इसे हमें क्या करना है, इसका जो पाथ है वो पाथ कॉपी करना है। आपको ड्राइवर पे क्लिक करना है, देन शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए एंड राइट क्लिक। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कॉपी एज ए पाथ। ओके, देन यहाँ पर पेस्ट करना है। पाथ जो है ड्राइवर का एज इट इज़ कॉपी हो चुका है, बस यहाँ पर आपको सिंगल स्लैश नहीं डबल स्लैश देना होगा, अदरवाइज़ ये एरर मारेगा। सो इस तरीके से पाथ जो है हमने कॉपी कर लिया है। इट्स अ ड्राइवर विथ एक्सटेंशन नहीं हटाना, एक्सटेंशन मस्ट है यहाँ पे, देन सेमीकोलन ऐड कर दिया। ओके, सो सिस्टम इज़ ए क्लास इन ए जावा, राइट। वी आर यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावा के भी यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स है वो यूज़ होंगे ऑब्वियसली। सिस्टम इज़ ए क्लास, देन सेट प्रॉपर्टी इज़ ए फंक्शन विद टू पैरामीटर, दैट इज़ अ की एंड द वैल्यू। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है की, सेकंड जो होता है वो वैल्यू होती है। की इज़ नथिंग बट आपके ब्राउज़र का नाम होता है इन दिस सिंटैक्टिकल मैनर, एंड वैल्यू जो होती है वो आपके ब्राउज़र के ड्राइवर का पाथ होता है। ओके, देन सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है आपके ब्राउज़र का एक इंस्टेंस क्रिएट करना। सो हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ योर ब्राउज़र इन ए वेब ड्राइवर, उसके लिए हमें यहाँ पर इंटरफेस लगेगा, वेब ड्राइवर इंटरफेस। देन यहाँ पर आपको उस ब्राउज़र का क्लास लेना होगा जिस ब्राउज़र में आपको टेस्टिंग करनी है। सो आई वांट टू टेस्ट माई एप्लीकेशन इन ए क्रोम ब्राउज़र। सो क्रोम ब्राउज़र का एक क्लास बनाया हुआ है वेब ड्राइवर में जो है क्रोम ड्राइवर। ओके, नाउ ये जो वेब ड्राइवर है ये इनबिल्ट इंटरफेस है। इस वेब ड्राइवर इंटरफेस के लिए आपको कुछ पैकेज है वो इंपोर्ट करने होंगे। सो आपको जस्ट माउस लेकर जाना है उस इंटरफेस पे एंड यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट। जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। ओके, नाउ हमें क्या करना है, गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्रोम ब्राउज़र में ओपन करनी है। सो ब्राउज़र कौन सा लगेगा, क्रोम ब्राउज़र। इस क्रोम ब्राउज़र के लिए ड्राइवर कौन सा लिया आपने, वो कहाँ पर स्टोर है, वो इस लाइन पर आके पता चलेगा JVM को। ओके, एंड देन ब्राउज़र का नाम क्या है, क्रोम है, वो की में आने के बाद JVM को पता चल जाएगा। लेकिन कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है वो कैसे पता चलेगा, जब हम उस वेबसाइट की या उस एप्लीकेशन का प्रॉपर URL देंगे तभी जाकर वो एप्लीकेशन ओपन होगा। फॉर दैट पर्पज़ हमें यहाँ पर ये जो डी ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर का वो यूज़ करना होगा। सो d.get एंड विद इन दिस गेट फंक्शन आपको यहाँ पर URL पास करना है। सो ये है URL, कॉपी कर लीजिए एंड मैं अभी क्रोम ब्राउज़र क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पर जो URL है मैं वो पेस्ट कर रही हूँ, ये है मेरा URL। ठीक है, सो क्रोम ड्राइवर ये क्लास है, इस क्लास के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम वन बाय वन हर एक फंक्शन देखने वाले हैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपको सिर्फ ये जो गूगल की वेबसाइट है क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ सिसआउट यानी कि कुछ मैसेज देती हूँ, क्रोम ब्राउज़र लोड।
देन गूगल वेबसाइट इज़ ओपन। ओके, तो ये था मेरा कोड ब्राउज़र ओपन करके उसमें गूगल की वेबसाइट ओपन कराने का यूजिंग जावा प्लस वेब ड्राइवर। अब ये जो कोड है एग्जीक्यूट कब होगा, जब हमारे मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ओपन ब्राउज़र फंक्शन को कॉल करेंगे। ये तो जावा की बेसिक कंसेप्ट है जो हम फर्स्ट डे से लर्न करते आ रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट नेम एंड नेम ऑफ योर फंक्शन, दैट इज ए ओपन ब्राउज़र फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे एंड लेट्स चेक ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन होता है या नहीं। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कहीं पर भी क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं है फ़िलहाल। तो मैं रन कर रही हूँ अपना कोड, सिंपली रन एज ए जावा एप्लीकेशन। जैसे जैसे हर स्टेप्स एग्जीक्यूट होते जाएगी वैसे ही ये सिस आउट जो हमने यहाँ पर प्रिंट किए हैं वो कंसोल पे दिखाई देंगे हमें। तो कंसोल लेकर आते हैं पहले स्क्रीन पे। देखिए जैसे ही आपका वेब ड्राइवर का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे ऑन योर कंसोल। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है ऑटोमेटिकली। क्रोम ब्राउज़र लोडेड, गूगल वेबसाइट इज़ ओपन। मैसेज प्रॉपरली आ चुके हैं मेरे क्रोम पे। अब ये जो क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ है इसे देखिए जाके, सी क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है और उसमें गूगल की जो वेबसाइट है वो भी ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोम इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। दैट्स मीन ये जो क्रोम है, ये जो वेबसाइट है, ये ऑटोमेशन वेब ड्राइवर के थ्रू ओपन हो चुकी है। ठीक है, मैं ब्राउज़र को क्लोज़ कर रही हूँ। ये जो मेरी टेस्टिंग थी गूगल को ओपन करना यूजिंग क्रोम ड्राइवर वो सक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, जब मेरी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो मैं अपने ब्राउज़र को क्लोज़ कराती हूँ यूजिंग वेब ड्राइवर। सो फॉर दैट ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन आपको यूज़ करना होगा एंड यहाँ पे एक मैसेज देती हूँ ब्राउज़र इज़ क्लोज्ड। कोड फिर से रन कर रही हूँ, मेरे मशीन पे कहीं पर भी क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं है। आप देख सकती है कंसोल पे मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो चुका है एंड क्लोज्ड भी हो चुका है। सी क्रोम ब्राउज़र लोडेड, दैट्स मीन ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी। गूगल वेबसाइट इज़ ओपन, दैट्स मीन 15th नंबर की जो लाइन है वो गूगल वेबसाइट ओपन हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर ब्राउज़र क्लोज़ करने का फंक्शन कॉल किया था इसलिए ब्राउज़र क्लोज़ हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर कहीं पर भी क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का सेलेनियम वेब ड्राइवर का कोड जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इजीली समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड जार्स फॉर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आफ्टर दैट ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे जार्स जो है वो एक फोल्डर में डालने हैं। देन आपको प्रोजेक्ट बनाना है एंड इन दिस प्रोजेक्ट आपको जार्स ऐड करने होंगे कंपलसरी, बिकॉज ये जो हम यहाँ पर इनबिल्ट इंटरफेस एंड इनबिल्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्लास एंड इंटरफेसेस जो है वो इस जार्स में इंपोर्ट किए हैं। सो ये जार्स ऐड करने ही होंगे आपको। देन ये है कोड, सेलेनियम वेब ड्राइवर का सिंपल कोड है ब्राउज़र ओपन कराने के लिए। एंड ये जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट, इवन यू कैन ओपन फेसबुक्स वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट ऑल्सो। मैंने सिंपली गूगल की वेबसाइट ओपन करके दिखाई आपको, बस वेबसाइट जो है वो प्रॉपर लीजिएगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आपने यहाँ पर वेबसाइट जो है वो गलत दे दी, जैसे कि मैंने ये जो प्रोटोकॉल है वो हटा दिया है एंड जस्ट मैंने www.google.com इतना ही टाइप किया है। अब कोड को रन कीजिए एंड देखिए कि ये जो
टेस्टिंग है ये सक्सेसफुली रन होती है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया, टेस्टिंग के लिए यहाँ पर URL प्रॉपर देना ज़रूरी है। अगर प्रॉपरली URL पास नहीं करोगे तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए, ब्राउज़र जो है वो ओपन हुआ है, लेकिन वेबसाइट आपने जो प्रोवाइड की थी गूगल के लिए वो इनकरेक्ट होने की वजह से यहाँ पर गूगल का जो स्क्रीन है वो नहीं आ रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोल पे कुछ एरर्स थ्रो हो रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, दैट्स मीन आपका जो ये वेबसाइट है ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर वेबसाइट ही प्रोवाइड कीजिएगा। विथ ऑल द प्रोटोकॉल्स स्लैश ये जो URL है वही प्रॉपर दीजिएगा, एंड देन आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये था आज का सेशन सेलेनियम वेब ड्राइवर का। नेक्स्ट सेशन में हम यही कोड फायरफॉक्स के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखेंगे एंड और भी कुछ ट्यूटोरियल्स देखेंगे वेब ड्राइवर के ऊपर। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।